Hello everyone and welcome back to my playlist of neuroanatomy. So we are beginning chapter number 2, a very important chapter from Snell which will talk about neurons and neuroglia. आज की वीडियो फोकस करेगी न्यूरॉन्स के स्ट्रक्चर और उनकी टाइप्स पर. Obviously it's a long chapter covering a lot of different objectives जिसमें से कुछ objectives तो actually physiology के हैं, so that we will do very quickly in the upcoming videos. Today we are going to focus on these two objectives which belong to a structure and different types of neuron, and later on in upcoming videos we will talk about synapses and neuroglia. Okay, so stay tuned. Beginning a very important chapter today. Important इसलिए क्योंकि पूरा नर्वस सिस्टम किन सेल से मिलके बनता है बॉस? वो बनता है न्यूरॉन से मिलके, और पूरे नर्वस सिस्टम का सपोर्टिंग मैकेनिज्म क्या है? न्यूरोग्लिया. सो दैट इज काइंड ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वॉट एवर वी स्टडी. न्यूरोएनाटमी के मैंने आपको पहले भी बताया देयर आर 17 चैप्टर्स इन टोटल. एक चैप्टर हम कर चुके हैं. दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक चैप्टर, बिकॉज ये नहीं समझा तो आने वाले चैप्टर में समझ ही नहीं आएगा कि न्यूरॉन किस तरह के हैं, किस तरह के ट्रैक्ट्स बनते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग. सारी स्टोरी न्यूरॉन पे डिपेंड करती है. ओके, सो आइए लेट्स बिगिन विद अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज अ न्यूरॉन. सो न्यूरॉन इज अ नेम गिविंग टू द नर्व सेल. अब पहली बात तो ये समझनी है कि न्यूरॉन इज नथिंग बट अ सेल ऑफ नर्वस सिस्टम. ओके, जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स और होते हैं. सो इफ वी टॉक अबाउट स्टमक से फॉर एग्जांपल, सो देयर इज अ स्टमक. यहाँ पे जो सेल्स हैं दीज आर कॉल्ड गैस्ट्रिक सेल्स. इसी तरह वी हैव डियार्डिनम. डियार्डिनम की एपिथेलियल लाइनिंग है, सो देयर आर डियार्डिनल एपिथेलियल सेल्स एंड द रेस्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. किडनी की बात करते हैं तो किडनी के सेल्स को हम नाम देते हैं नेफ्रॉन. सो यू रिमेंबर द बाउमन कैप्सूल, द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, distal convoluted tubule, collecting duct. This is a cell. That's a specialized cell, you know. बिल्कुल इसी तरह there in the neuron, the first thing you need to remember is that this is a specialized nerve cell. ये एक स्पेशल किस्म का ऐसा सेल है जिसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट property है, which is excitability. Number one, it's a cell. Number two, it is an excitable cell. आपकी बॉडी में बहुत कम सेल्स ऐसे हैं which are excitable. Excitable का मतलब ये है कि जब आयंस की मूवमेंट here and there across the plasma membrane आगे पीछे होगी तो these cells will conduct electrical impulses. Okay, so neurons are excitable cells that are specialized for reception of stimuli and conductance of nerve impulse. They vary considerably in size and shape, but each possesses a cell body from which one or more processes arise, which are called neurites. So अब ये दो टर्मिनोलॉजीज आ गई, सेल बॉडी एंड न्यूराइट. देखो टिपिकली जो सेल है ना उसका स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है किस तरह होता है. A typical cell is usually something like either this, or if this is the basement membrane, the cuboidal cell, or if this is the basement membrane, the squamous cell. So this is something a cell is usually looking like, you know, that is the nucleus here. But neuron जो है nervous system का cell ऐसे नहीं होता. When we say ऐसा नहीं होता का मतलब ये है कि the normal structure of a neuron is a cell body. So there is a cell body which obviously contains the nucleus, and then there are certain processes जो इसमें से निकलते हैं. अब कुछ processes इस तरह से होते हैं, short processes एक तरफ से निकलते हैं और एक तरफ से ऐसे long process निकलता है. तो ये जो long process है इसको फिर अलग नाम देते हैं, short process को अलग नाम देते हैं. लेकिन ये जो processes हैं, ये process और ये process, इनको मिलाकर नाम दिया जाता है. These are called neurite. So neurite is the term used for processes which are being emerging from the cell body. और ये जो बीच का structure है जिसमें nucleus है, this is what we call the cell body. Okay, अब न्यूराइट जो है वो जो शॉर्ट न्यूराइट्स हैं इनका अलग नाम है, दीज आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. और ये जो लॉन्ग न्यूराइट है इसका अलग नाम है, दिस इज कॉल्ड एक्सॉन. लेकिन एक्सॉन और डेंड्राइट दोनों बेसिकली क्या है? न्यूराइट. ओके, तो ये टर्म आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज अ न्यूराइट? न्यूराइट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग इंफॉर्मेशन एंड कंडक्टिंग इट टुवर्ड्स द सेल बॉडी आर कॉल्ड डेंड्राइट्स. सिंगल लॉन्ग tubular neurite that conducts impulses away from the cell body is called axon. Dendrites and axons are commonly also referred to as nerve fibers. ठीक है, तो ये सारी terms अब यहाँ पे I am throwing these terminologies on you ताकि ये आपको बिल्कुल क्लियरली पता हो. जब हम कहें कि what is a neurite, you should know what is a neurite. Okay, now let us draw nerve cell, something like this. Okay, so ये जो ऊपर मैं बना रहा हूँ spiky thing, this is spiky because यहाँ से मैं ड्रॉ करने लगा हूँ बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस. ये जो छोटे छोटे प्रोसेसेस हैं इनका काम ये है कि ये इन्वायरमेंट से इधर उधर से मैसेजेस लेकर यानी केमिकल्स और इम्पल्सेस लेकर
आते हैं towards the cell body. This is the cell body. So these are called afferent processes. Afferent processes क्यों? क्योंकि ये मैसेजेस को लेकर आ रहे हैं इस डायरेक्शन में towards the cell body. और ये वाला जो लॉन्ग प्रोसेस है ये सेल बॉडी से नर्व इम्पल्स को लेके जाता है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. सो दिस इज बेसिकली द इफरेंट पार्ट, इफरेंट टाइप ऑफ न्यूराइट. तो ये जो छोटे छोटे अफरेंट पार्ट होते हैं इनको हम नाम देते हैं डेंड्राइट. और ये जो लंबा सा मैसेज लेके जा रहा है दिस इज कॉल्ड एक्सॉन. मैंने आपको बताया कि डेंड्राइट और एक्सॉन दोनों को मिलाकर नाम दिया जाता है न्यूराइट. ओके, बट डेंड्राइट का काम है इम्पल्सिस लाना, एक्सॉन का काम है इम्पल्सिस लेके जाना. ओके, तो ये सारी बात यहाँ इस पैराग्राफ में लिखी हुई है. नाउ द न्यूरॉन्स आर फाउंड इन द ब्रेन, इन द स्पाइनल कॉर्ड एंड इन द गैंग्लिया. सो पूरा जो नर्वस सिस्टम है उसके सेल्स को हम कहते हैं न्यूरॉन. तो देयरफॉर इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द ब्रेन, इन द स्पाइनल कॉर्ड, इन द गैंग्लिया. नाउ अनलाइक मोस्ट अदर cells in the body, normal neuron is mature in mature individual do not undergo division and replication. So neurons do not multiply. इनका जो क्रोमोसोम है they do not multiply. Okay, therefore if there is a nerve injury, अगर कोई न्यूरॉन डैमेज हो जाता है तो चांसेस ये हैं कि वो डैमेज ही रहेगा. Okay, so that's a very important point. Now the types of neuron. Although the cell body of a neuron may be as small as only 5 micrometer or as large as 135 micrometer. तो ये जो cell body आपको बताई है, it can be a small cell body, it can be a large cell body. Okay, depending upon what is the location. The processes or the neurites may extend over a distance of more than 1 meter. ये जो axon है ये इतना लंबा हो सकता है 1 meter. Can you imagine? It's a big long axon. Now neurons can be classified based upon their number, length and mode of branching in the neurites. So ये जो neurites basically भी हमने डिस्कस किए हैं, dendrites और axon, उनके पैटर्न पर इनको डिवाइड किया जा सकता है. So the first category is known as unipolar neurons. आपको एग्जाम के पर्पसेस के लिए ये पता होना चाहिए कि unipolar neurons होते क्या हैं और इनकी लोकेशन पता होनी चाहिए नर्वस सिस्टम में ये कहाँ होते हैं. So that's the kind of important thing. Unipolar neuron, as the name indicates, unipolar, they have only single neurite that divides a short distance from the cell body into two branches, one proceeding to some peripheral structure and the other entering the central nervous system. The branches of this single neurite have the structural and functional characteristics of an axon. In this type of neuron, the fine terminal branches found at the periphery of the axon at the receptor side are often referred to as dendrites. Example of this form of neuron are found in the posterior root ganglia. Now, first thing, ये होते क्या हैं? Second thing, ये कहाँ होते हैं? तो पहली कैटेगरी ऑफ न्यूरॉन मैंने आपको बताया यूनिपोलर न्यूरॉन. Let us look at the diagram. So this is a unipolar neuron. So this is the cell body because it contains the nucleus. इस cell body से देखें एक process निकल रहा है, only one process, and then the one process is dividing into two different processes. लेकिन है initially एक ही process. चूंकि initially एक process है तो इसको हम क्या नाम देते हैं? Unipolar. अब इसको compare, और ये कहाँ होता है? The location is posterior root ganglion. Okay, spinal cord का posterior root ganglion. Now that is again a cell body, लेकिन इसमें एक प्रोसेस ये निकल रहा है ऊपर की तरफ, एक प्रोसेस ये निकल रहा है नीचे की तरफ. तो इसमें एक्चुअली एक प्रोसेस निकला था, इसमें कितने प्रोसेस निकल रहे हैं? 2 प्रोसेसेस. एंड दिस इज व्हाई दिस इज नोन एज बाइपोलर. अगर आप इस न्यूरॉन को कंपेयर करें, सो दिस इज द सेल बॉडी बिकॉज इट कंटेन्स द न्यूक्लियस. इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस ऊपर हैं, छोटे प्रोसेसेस ये वाले सारे, और ये अफरेंट प्रोसेसेस होते हैं. दीज आर ऑल कॉल्ड डेंड्राइट्स. और एक लंबा सा प्रोसेस है विच इज कॉल्ड एक्सॉन. चूंकि इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस निकल रहे हैं, बहुत सारे छोटे और एक लंबा, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपोलर. सो न्यूरॉन कैन बी यूनिपोलर, bipolar and multipolar. Okay, और फिर इनकी यहाँ पे लोकेशंस दी हुई है. दिस इज द सेकंड कैटेगरी. बाइपोलर have an elongated cell body with a single neurite emerging from each end. दोनों तरफ से एक न्यूराइट ऊपर से, एक न्यूराइट नीचे से. ठीक है ना. और ये कहाँ होता है? एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ न्यूरॉन इज रेटिनल बाइपोलर cells and the sensory cochlear cell, vestibular ganglia. Hearing and vision is the job of bipolar neurons. Okay, the next category is multipolar, and this is present almost everywhere. So most neurons in the brain and spinal cord are actually multipolar category. Okay, now
न्यूरॉन्स में सो ये तो हो गया बेस्ड ऑन द डिफरेंट नंबर्स एंड शेप्स ऑफ द न्यूराइड्स. अब बात करते हैं बेस्ड on some other category. Neurons may also be classified according to size. Now here we are talking about size. Golgi type 1 neurons have long axons that can stretch to 1 meter or more. इनके जो एक्सॉन हैं वो बहुत लंबे लंबे हो सकते हैं 1 मीटर तक. Okay, the axons of these neurons form a long fiber tract of brain and spinal cord and the nerve of the peripheral nerves. The pyramidal cells of the cerebral cortex, Purkinje cells and cerebellar cortex and the motor cells of the spinal cord are good examples. अब ये इतना लंबा लंबा इनका होना ज़रूरी भी है क्योंकि इनकी सेल बॉडीज़ होती हैं. फॉर एग्जांपल हायर द कॉन्शियस सेंटर्स में, फॉर एग्जांपल द कॉर्टेक्स, सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड द सेरिबेलर कॉर्टेक्स, और वहाँ से ये जाते हैं डिफरेंट ऑर्गन्स तक. सो दे नीड एक्चुअली लॉन्ग एक्सॉन्स एंड सच nerve fibers, such neurons are called Golgi type 1. Okay, then there is another category which is called Golgi type 2 neurons. They have short axons that terminate in the neighborhood, नज़दीक ही, जल्दी ही, करीब ही कहीं ख़त्म हो जाते हैं. These neurons are numerous in cerebral and cerebellar cortex and are often inhibitory in function. So इनका काम usually, suppose अगर ये cortex है तो ये यहीं से originate हुए और यहीं कहीं करीब में ख़त्म हो गए, फिर दूसरा originate हुआ वो यहीं कहीं करीब में ख़त्म हो गया. So nearby, short distance Golgi type 2, long distance Golgi type 1. ओके, सो न्यूरॉन की ये टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको पता होनी चाहिए. यूनिपोलर न्यूरॉन्स, अगर एग्जाम में आपसे सवाल होता है कि हाउ वुड यू क्लासीफाई न्यूरॉन्स, तो आपका जवाब होना चाहिए न्यूरॉन्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ न्यूराइड्स, unipolar and bipolar and multipolar. They can also be classified based on the size of axon, Golgi type 1 and Golgi type 2. Okay, now let us study के डिफरेंट न्यूरोनल स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं. न्यूरॉन मैंने आपको बता दिया, इट्स अ सेल, इट्स अ स्पेशलाइज्ड सेल. जैसे हार्ट के स्पेशलाइज्ड सेल्स को हम कहते हैं कार्डियोमायोसाइट्स, जैसे किडनी के स्पेशल सेल्स हैं नेफ्रॉन्स विच आर अगेन कंपोज्ड ऑफ अ लॉट ऑफ डिफरेंट सेल्स. बिल्कुल इसी तरह जो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं दे आर कॉल्ड न्यूरॉन्स. और न्यूरॉन के पास एक सेल बॉडी है, इट कंटेन्स अ सेल बॉडी and it is simply like other cells जिसमें न्यूक्लियस होता है और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं and it is surrounded by a cell membrane. तो आइए पढ़ते हैं कि न्यूरॉन के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं. So let's first talk about cell body. Interestingly, the volume of the cytoplasm within the nerve cell body is often far less than the total volume of the cytoplasm in the neurites. Now that should make sense to you because if you look at this diagram, ये डायग्राम देखिए ज़रा पूरी. इस पूरी डायग्राम में इट इज़ क्लियरली विजिबल कि ये जो न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म इन प्रोसेसेस में कंटिन्यू कर रहा है. तो अगर आप इस एरिया को ले लें, सिर्फ सेल बॉडी के एरिया को, तो इसमें जो टोटल साइटोप्लाज्म है, और अब अगर आप इस पूरे एरिया को ले लें, एक ये पूरा एक्सॉन का एरिया, फिर ये बहुत सारे छोटे 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 डेंड्राइट्स हैं, अगर इन सारे एरियाज के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उनको मिस कर लें, यानी ये 1, ये 2 और ये 3. So cytoplasm of the cell body is actually less than combined processes का cytoplasm. ठीक है? Now the cell bodies of a small, where is it? Granular cells of the cerebral cortex measure about 5 micrometer. मैंने आपको ये बात पहले भी थोड़ी देर पहले बताई थी कि the cell bodies can be very small in size and cell bodies can be very large in size, more than 100 micrometer. Okay, 135 micrometer, for example, in the atrial hall cells of the spinal cord. So, depending upon where it is, इसका क्या function है, the size may vary cell body का. And the nucleus, which stores the genes, is commonly centrally located within the cell body and is typically large and rounded. किधर है भाई न्यूक्लियस? हर न्यूरॉन में दिख रहा है. देखें, ये न्यूरॉन है तो ये इसका न्यूक्लियस, ये न्यूरॉन है तो ये इसका न्यूक्लियस. सो द न्यूक्लियाई आर राइट देयर इन द सेंटर. ओके, अब न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस है, ये एक बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेल का न्यूक्लियस, यानी ये एक सेल है या सेल बॉडी है, उसका न्यूक्लियस, और एक हम वर्ड न्यूक्लियस यूज करते हैं न्यूरो एनाटमी में. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. सो न्यूक्लियस इन सेल यानी साइटोलॉजी एंड न्यूक्लियस इन न्यूरो एनाटमी, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. व्हाट आर द डिफरेंसेस? सिंपल, जो सेल का न्यूक्लियस है वो पार्ट है सेल का जिसके अंदर सारा जेनेटिक मटेरियल है, ऑल द जीन्स आर देयर, ऑल द क्रोमोसोम्स आर देयर, सो दैट्स द न्यूक्लियस. लेकिन जब हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की, तो उसमें मैंने आपको बताया था देयर इज अ व्हाइट मैटर,
Yeah, remember that? And there is a gray matter. अब होता ये है कि जो white matter है इसके अंदर if there are a lot of cell bodies, so ये पूरा होगा white matter, और इस पूरे white matter के बीच में कहीं कहीं you will have masses, you will have areas which will be gray, and gray because they contain the cell bodies. So ऐसे designated masses को भी हम न्यूरोएनाटमी में क्या नाम देते हैं? न्यूक्लियाई. सो व्हेन वी से न्यूक्लियस फेशियल नर्व न्यूक्लियस, तो उस न्यूक्लियस का मतलब है कि वाइट मैटर के समंदर में, इसके पूरे लंबे चौड़े दरिया में कहीं कहीं बीच में छोटे से आइलैंड्स हैं जो ग्रे इन कलर हैं, विच आर ऑल्सो कॉल्ड न्यूक्लियाई. ओके, तो न्यूरोएनाटमी में ये टर्म न्यूक्लियाई बड़ी इंपॉर्टेंट है. Now, in mature neurons, the chromosomes no longer duplicate themselves because mitosis नहीं होता. Neurons में regeneration का division का process नहीं होता. Okay, and function only in gene expression. Therefore, chromosomes are not arranged as compact structure but uncoiled. बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट ज़रा समझ लो आज एक ही दफ़ा, क्योंकि सारी ज़िंदगी काम आने वाला कॉन्सेप्ट है और ये तुमको बार बार कोई समझाएगा नहीं. तो आइए समझ लीजिए इसको डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से. ओके, कॉन्सेप्ट ये है भाई, एक टर्म होता है हेट्रोक्रोमैटिन, ठीक है, एक टर्म होता है यूक्रोमैटिन. इन दोनों में फ़र्क पता है? यूक्रोमैटिन का मतलब ये है कि जो आपका क्रोमोसोम है वो लूज है, और जो हेट्रोक्रोमैटिन है उसका मतलब ये है कि क्रोमोसोम बहुत टाइटली कॉइल्ड है. अब इन दोनों में क्या फ़र्क हुआ? ये तो एक चीज़ मैंने आपको बता दी, डिफरेंस नंबर 1, कि दिस इज़ टाइट एंड दिस इज़ लूज. अच्छा, इसके टाइट होने का मतलब ये है कि दिस इज़ नॉट accessible. Not accessible by whom? Not accessible by the enzymatic machinery. और चूंकि ये not accessible होता है तो इसमें replication या gene expression नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी जो genes हैं वो सारी छुपी हुई हैं. This is not accessible. वो अपनी genes नहीं दिखा रहा, genes दिखाएगा नहीं, तो no gene expression. ठीक हो गई बात? तो चूंकि ये बहुत टाइटली बाउंड होता है, चूंकि ये नॉट एक्सेसिबल होता है, इसीलिए नो जीन एक्सप्रेशन. ये 3 पॉइंट्स. इसका बिल्कुल उल्टा है यूक्रोमैटिन में. यूक्रोमैटिन इज लूज इन शेप, इट इज एक्सेसिबल, इजीली एक्सेसिबल, क्योंकि लूज है, यहाँ पे पता है कौन सी जीन है, यहाँ पे कौन सी जीन है, एंड देयरफॉर जीन एक्सप्रेशन इजीली हैपेंस. अब ये है यूक्रोमैटिन की प्रॉपर्टीज. अब जो न्यूरॉन्स है ना, उसमें तुम मुझे बताओ कि हेट्रोक्रोमैटिन होगा या यूक्रोमैटिन होगा. नॉर्मल सेल्स में हेट्रोक्रोमैटिन होता है बाज एरियाज में यूक्रोमैटिन होता है. सो फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात कर रहा हूँ बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास की, सो सपोज ये बीटा सेल ऑफ पैंक्रियास है, सो इसमें कुछ जीन्स हेट्रोक्रोमैटिन होगी लेकिन फिर कुछ जीन्स यूक्रोमैटिन होगी. फॉर एग्जाम्पल, इंसुलिन की जीन यूक्रोमैटिन होगी, यानी वो लूजली अरेंज्ड होगी, इसीलिए इंसुलिन एक्सप्रेस होगा, इसीलिए बीटा सेल्स में इंसुलिन बनता है. लेकिन यही इंसुलिन की जो जीन है ये फॉर एग्जांपल आपके एड्रीनल ग्लैंड के सेल्स में हेट्रोक्रोमैटिन में होगी, एक्सप्रेस नहीं होगी. ओके, सो ये हम बहरहाल जेनेटिक्स में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे. इस वक्त मुझे ये बताइए कि जो न्यूरॉन है उसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, वो हेट्रोक्रोमैटिन फॉर्म में होगा ज़्यादा या यूक्रोमैटिन फॉर्म में होगा? इट विल बी इन यूक्रोमैटिन फॉर्म, क्योंकि इसमें एक्टिव जीन एक्सप्रेशन हो रही होती है, जिसका मतलब ये है कि इसको एक्सेसिबल होना पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि ये लूज फॉर्म में होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि ये टाइट फॉर्म में नहीं होगा, जिसका मतलब ये है कि ये हेट्रोक्रोमैटिन नहीं होगा, यूक्रोमैटिन होगा. ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. नहीं समझ में आया, रोको वीडियो को, दोबारा देखो, उसका बिल्कुल पैसा नहीं लगना, लेकिन आपको बात समझ में आ जाएगी. इस पैराग्राफ को दोबारा पढ़ें कि अनकॉइल्ड स्टेट में होता है, लूजली अरेंज्ड. ओके, a lot of gene expression happens there and no cell division happens. So that is all about the nucleus that you have to remember. आगे चलें. A single prominent nucleolus is also present, which makes a lot of ribosomal RNA. No important deal in that. पता है ये बात. Females में extra X chromosome होगा inactivated, which is called bar body. ये भी आपको पता है. And then there's a nuclear envelope. जो nucleus है, it is surrounded by a nuclear membrane, which is called the nuclear envelope. Is continuous with the cytoplasmic rough or granular endoplasmic reticulum, and there are nuclear pores जिसमें से चीजें अंदर और बाहर आ जा सकती है. So the rest of the story is actually the same as any other nucleus in your body.
हर न्यूक्लियस में ऐसे ही होता है यार, हर न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, हर न्यूक्लियस के अंदर ऐसे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनको न्यूक्लियर पोर्स कहा जाता है। हर न्यूक्लियस में ऐसे होता है यार कि वो कंटिन्यू होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, कोई नई कहानी नहीं है। हर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, लेकिन हर न्यूक्लियस में ज़्यादातर यूक्रोमैटिन नहीं होता। न्यूक्लियस में जो दूसरे सेल्स हैं बॉडी के, उसमें यूक्रोमैटिन भी होता है, हेट्रोक्रोमैटिन भी होता है, लेकिन न्यूरॉन्स में मोस्टली इट इज़ द यूक्रोमैटिन। ओके राइट, तो ये सारी बात हो गई कहानी। अच्छा, टेबल बार बार सामने आ रहा है यार, ये एक्चुअली मैं करा चुका हूँ, ऊपर टेक्स्ट में बता दिया कि न्यूरॉन्स की टाइप्स क्या क्या हैं बेस्ड ऑन द ब्रांचिंग पैटर्न, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर, और बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द एक्सॉन इज गोल्जा टाइप 1 एंड गोल्जा टाइप 2। ठीक है, ये उनकी अरेंजमेंट है और ये उनकी लोकेशन है। सो इंपॉर्टेंट टेबल है यार, याद कर लेना इसको। ओके, न्यूक्लियस की कहानी हो गई, चलो अब साइटोप्लाज्म के बारे में बात करते हैं। द साइटोप्लाज्म इज रिच इन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एज वेल एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन्स में देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस गोइंग ऑन गाइस, न्यूरोट्रांसमीटर्स बनेंगे ना, बहुत सारी प्रोटीन बनानी है, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक तो बहुत ही ज्यादा है। इसके अलावा और बहुत सारे ऑर्गेनील्स हैं सच एज नेसल सब्सटेंस, गोल्जाई बॉडीज, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल, देयर आर सेंट्रियोल्स, लाइसोसोम एंड लाइपोफस्किन, मेलानिन, पढ़ते हैं इन सब के बारे में। ठीक है, the nasal substance are basically the protein producing part of the neuron. Okay, so these are the ones which contains a lot of rough endoplasmic reticulums and a lot of ribosomes attached to it. This is why they are called rough endoplasmic reticulum. ये पूरे न्यूरॉन की सेल बॉडी में here and there फैले हुए होते हैं, so they are dispersed, they are in big numbers, but they are not present at the axon hillock. Axon hillock क्या बला है भाई? Axon hillock ये होता है कि suppose these are different short dendrites, और वो जगह जहाँ से एक्सॉन निकलता है, सो दैट पॉइंट इज नोन एज एक्सॉन हिलॉक। सो स्पेशलिटी है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो नेसल सब्सटेंस है दे आर नॉट प्रेजेंट एट द एक्सॉन हिलॉक, दे आर नॉट प्रेजेंट एट द एक्सॉन हिलॉक। ओके, सो दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। नाउ दे मेक प्रोटीन इज देयर जॉब, सो सिंपल, दिस इज नेसल सब्सटेंस, और प्रोटीन बनना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द न्यूरॉन बिकॉज न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड ऑल दीज थिंग्स, नेसल सब्सटेंस इज अ very important organelle. Okay, this substance is responsible for synthesizing protein. Oh, important function. अब अगर एज के साथ या बाज़ डिजीज़ में इफ़ द न्यूरॉन्स आर डैमेज्ड और फटीग्ड, सो नेसल सब्सटेंस जो हैं दे गो टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड दिस इज व्हाट वी कॉल क्रोमेटोलाइसिस। ओके, यहाँ ये टेबल बड़ा अच्छा सा दिया हुआ है, so whatever we are talking about right now is also briefed here. So for example, nasal substance, पहला cytoplasmic organelle, इसकी शेप क्या होती है? granular, because इसमें rough endoplasmic reticulum होता है। Appearance, broad cisternae ribosomes are there, it is basophilic because of the ribosomes. Location, throughout the cytoplasm, but they are not present, absent from axon hillock. ओके, फंक्शन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सो अगर आपको ये इतना लंबा चौड़ा टेक्स्ट नहीं पढ़ना तो सिर्फ टेबल याद कर लो एंड देन यू आर गुड टू गो। Then the Golgi bodies, when seen with a light microscope after staining with the silver osmium method, appears as network of irregular wavy thread-like structures around the nucleus. ये बाकी cells में भी ऐसा ही होता है, so there is nothing special about neuroanatomy here. Okay. Now in electron micrographs, it appears as clusters of flattened cisternae. पर्टिकुलरली ऐसे ही है, बाकी सेल्स में भी ऐसे होता है गोल्जी बॉडीज। काम इनका क्या होता है? बेसिकली द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वेसिकल्स, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूली फॉर्म प्रोटीन। सो प्रोटीन प्रोड्यूस इन द नेसल सब्सटेंस इज ट्रांसफर्ड इनसाइड द गोल्जी कॉम्प्लेक्स in transport vesicles where it is temporarily stored and where the carbohydrates may be added to the protein to form the glycoprotein. That's the job of Golgi bodies. So Golgi body में rough endoplasmic reticulum प्रोटीन बनाने के बाद भेज देता है कहाँ? Golgi bodies में कि भाई संभाल इसको यार, थोड़े से के लिए इसको रख भी ले, थोड़ा इसमें कार्बोहाइड्रेट ऐड कर दें, and then the proteins are believed to travel from one cisternae to the other via the transport vesicles. Each cisternae of the Golgi complex is specialized for different types of enzymatic reactions. At the trans side of the complex, the macromolecules are packaged and transported to the nerve terminal. So trans side basically कहते हैं, suppose अगर ये cell body है और ये nucleus है और यहाँ पे ये Golgi bodies हैं, these are the Golgi bodies, and here somewhere is the rough endoplasmic reticulum. ये rough endoplasmic reticulum प्रोटीन बना के इस पे भेजेगा, यहाँ प्रोसेसिंग होगी और यहाँ से प्रोटीन निकलेगी। अब ये प्रोटीन निकल के एक्सॉन के जरिए कहीं भी जा सकती है। सो जिस जगह से प्रोटीन रिलीज होती है Golgi bodies से, उस सरफेस को कहते
कहते हैं ट्रांस सरफेस. ओके, सो दैट इज नोन एज ट्रांस सरफेस. सो बेसिकली गोल्जी बॉडीज का यहाँ पर भी वही काम है यार, जो सेल्स बाकी आपकी बॉडी के हैं जो काम होता है वही यहाँ पे काम है. गोल्जी कॉम्प्लेक्स समरी देखिए, क्लस्टर्स ऑफ फ्लैट सिस्टर्ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ये नजर आएगा. ऑब्वियसली बिल्कुल यूं ऐसे स्टैक्स बनाता है लाइक दिस. ओके, बहुत सारे होते हैं ये, लॉट ऑफ स्टैकी अपीयरेंस, एक के ऊपर एक के ऊपर एक, close to the nucleus, and function adds carbohydrate to the protein molecule, package the products and transports between the terminals through the cell membrane and from the axon. तो ये इसका काम है, protein packaging and protein transport. The next organelle इस टेबल पर कौन सा आपको नजर आ रहा है जनाब? Mitochondria. Spherical rod-like structures, double membrane होते हैं with crystalline side. ये बाकी cells की तरह है. Scattered throughout the cell body and they produce what is the job of mitochondria? To produce the currency of your cell, which is called Bitcoin. No, not Bitcoin, ATP. Okay, adenosine triphosphate. Now, neurofibrils, इनका काम है to maintain and determine the shape of the neuron. They run from dendrite through cell body to axon, and they run parallel to each other, bundles of 10 nanometer in diameter, maintaining the shape and structure of the neuron. Neurofibrils फ्रेमवर्क है सेल का, ताकि सेल को एक रिजिड शेप मिले न्यूरॉन्स को. ओके, देन माइक्रोफिलामेंट्स, द रोल इन फॉर्मेशन ऑफ रिट्रैक्शन ऑफ द सेल प्रोसेसेस एंड इन द सेल ट्रांसपोर्ट, एंड दीज आर स्मॉल फाइबर्स, स्मॉल एज compared to the neurofibrils, 3 to 5 nanometers in diameter. They forms a dense network beneath the plasma membrane, and then there are microtubules, which are biggest of the fibers, 25 nanometer in diameter. Cell transport basically होता ही है कि सपोज ये सेल बॉडी है, तो इस सेल बॉडी में ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स, ये इस तरह से ट्रैक बनाते हैं. इन ट्रैक्स पर प्रोटीन एक्चुअली चलती हैं. जैसे ट्रैक पर रेलगाड़ी चलती है ना, रेलगाड़ी के पहिए यूं लगे होते हैं और रेलगाड़ी पूरी चल रही होती है ट्रैक पर. ये ट्रैक ना हो तो रोड पे रेलगाड़ी कैसे चलेगी यार? तो ये ट्रैक प्रोवाइड करना काम होता है इन माइक्रोफिलामेंट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स का. ये बाकी सेल्स में भी ऐसे ही है यार, न्यूरॉन्स में कोई आसमानी बला नहीं आ गई. ओके, नाउ लाइसोसोम्स, इनका काम है सेल स्कैवेंजर हैं ये. These are the bags fill up of a lot of enzymes present throughout the cell, and they contain primary residual body, secondary residual body. इसका मतलब ये है कि they basically kind of engulf different macromolecules within the cell, और सेल को बचाते हैं उन मॉलिक्यूल से, उनको हजम करते हैं, हड़प कर जाते हैं, खा जाते हैं. ओके, सेंट्रियोल्स का क्या काम है? बेसिकली सेंट्रियोल्स का काम होता है इन सेल डिवीजन, लेकिन न्यूरॉन्स में बेसिकली सेल डिवीजन नहीं होती. ओके, यहाँ इनका काम होता है प्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, मेंटेनेंस ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स. लाइपोफस्किन इज ऑब्वियसली ए पिगमेंट which is yellowish brown in color, and it's a metabolic byproduct of various metabolic reactions inside the cell body. Harmless है, scattered throughout the cytoplasm. Melanin जो है, it is related to formation of dopamine cycle में melanin बनता है, yellowish brown also in color, and in very high quantities in substantia nigra, क्योंकि substantia nigra जो है मिड ब्रेन का, उसमें बहुत सारा डोपामीन बनता है. चूंकि बहुत सारा डोपामीन बनता है तो बहुत सारा मेलानिन बन जाता है. ओके, तो ये टेबल बड़ा इंपॉर्टेंट है यार. अगर ये टेबल आपको अभी मैंने पढ़ा दिया है टेबल सारा, तो अभी बेसिकली मैं पूरा जो टेक्स्ट है ना इस पे से भाग सकता हूँ. सो माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं पूरे तो सेल में फैले होते हैं, इसमें मुझे कोई मजे की बात नहीं बताने की. डबल मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन बाहर होती है, इंटरनल जो मेम्ब्रेन है वो ऐसे फोल्ड्स बनाती है, उन फोल्ड्स को क्रिस्टी कहते हैं. यार ये तो नॉर्मल जो सेल है ना उसमें भी यही स्ट्रक्चर है. फिजियोलॉजी गाइटन की मेरी वीडियो देख लो उठा के. न्यूरोफाइब्रिल्स की हमने बात की, माइक्रोफिलामेंट्स की हमने बात की, और माइक्रोट्यूब्यूल्स की हमने बात की. सो ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन. ओके, राइट. ये सारी बात हो गई. देन स्लो ट्रांसपोर्ट एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट, दिस आर नॉट वेरी हाई यील्ड, आई वुड सिंपली स्किप दैम. लाइसोसोम की हमने बात की कि दे आर फॉर्म बाय बडिंग ऑफ फ्रॉम द गोल्जाई बॉडी. सो गोल्जाई बॉडीज एक्चुअली प्रोड्यूस लाइसोसोम्स. ओके, एंड they exist actually in 3 forms: primary lysosomes, which have just been formed; secondary lysosomes, which contain partially digested material such as myelin; and residual bodies, in which enzymes are inactive and the bodies have evolved from digestible material such as pigments. So इनका काम बेचारों का यही होता है, सारा दिन घूमते रहते हैं सेल बॉडी के अंदर और ढूंढते रहते हैं कहीं कोई खाने पीने वाली चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जो फालतू पड़ी हुई है, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं जिसको हम हड़प कर लें तो बेहतर होगा. ये काम है लाइसोसोम्स का. और वो चीज़ें क्या हैं? डिफरेंट पिगमेंट्स, लिपिड ड्रॉपलेट्स, इस तरह की चीज़ें, माइलिन. ओके,
सेंट्रियोल, बाकी तमाम सेल में सेंट्रियोल का मतलब है सेल डिवीजन, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं क्योंकि नर्व सेल डिवाइड करते नहीं है ना। तो यहाँ सेंट्रियोल का काम है प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, नाउ लाइपोफस्किन इज अ पिगमेंट मटेरियल, मेलानिन इज अ पिगमेंट मटेरियल, अ लॉट ऑफ दिस इज प्रेजेंट इन सबस्टेंशिया नाइग्रा ऑफ द मिड ब्रेन। सो बेसिकली अगर आप ये वाला टेबल पूरा कर लेते हो तो यू आर गुड। हम सेल बॉडी पढ़ रहे हैं, उसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की बात कर रहे हैं। अब एंड में क्विकली कमेंट कर देता हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिपिड बाइलेयर, ठीक है, इट्स अबाउट 8 नैनोमीटर थिक, और दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर, बीच में उसके प्रोटीन जैसे होता है यार, बाकी जैसी सारी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं जो मैंने फिजियोलॉजी में आपको सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ाया है, वैसा ही सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इधर भी है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ इनर एंड आउटर लेयर ऑफ वेली लूजली अरेंज्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल सच एज, इतना इतना थिक, सेपरेटेड बाय द मिडल लेयर ऑफ लिपिड, अबाउट इतना, नॉर्मल स्ट्रक्चर। ठीक हो गई बात। उसके बाहर एक कोट होता है विच इज आइदर कॉल्ड द सेल कोट और ग्लाइकोकैलिक्स। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो नॉर्मल इनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है दैट इज -80 मिलीवोल्ट, एंड बिकॉज दिस इज एन एक्साइटेबल सेल, तो यहाँ पर सोडियम की एंट्री अगर बढ़ जाएगी अंदर किसी भी वजह से, एंड दैट कैन बी बिकॉज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, बिकॉज ऑफ अ केमिकल इम्पल्स, ऑल बिकॉज ऑफ ट्रॉमा, व्हाटएवर, इफ सोडियम एंटर्स अ लॉट इनसाइड द potential is now acting membrane potential which goes up to +40. so all these details यहाँ इन्होंने दी हैं, अच्छा बहुत अच्छे तरीके से नहीं दी, कंफ्यूजिंग दी हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और एक्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ना, इस बुक यहाँ से नहीं पढ़ो, फिजियोलॉजी से पढ़ो। मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाके मेरी फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट देखो तो वहाँ ये बात सारी समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब मैं ये सारा स्किप करके और वी विल मूव ऑन टू देन द नेक्स्ट टॉपिक, अगली वीडियो में कराऊंगा वो, और वो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सिनैप्सिस, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टे ट्यून फॉर synapses lecture. Okay, so synapse पढ़ेंगे अगली वीडियो में। That's all about in this video, structure and types of neuron. If you like the video, please subscribe the channel, share the video. आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में बहुत जल्द। Take care of yourself.